हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वी आर ऑन ड्यू परीक्षा। और आज हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सेकंड यूनिट देखेंगे, उसके पीवाईक्यूज, दैट इज फेट्स ऑफ पायरुवेट। कि पायरुवेट का अनारोबिक मतलब अनारोबिकली किस में कन्वर्ट होता है, जब ऑक्सीजन की एब्सेंट होता है, जब ऑक्सीजन तब। एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, यानी इसके ऑक्सीडेटिव पार्ट ऑल्सो एंड नॉन ऑक्सीडेटिव पार्ट। आई होप आपको एंजाइम की सीरीज समझ आई होंगी। और जो हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का कल फर्स्ट यूनिट अपलोड करा था, आपको समझ आया होगा। गाइस प्लीज कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए कि हम कैसे और अच्छे से आपको समझा सकें, इम्प्रूव कर सकें। और आई होप कि हम आपको समझ आ रहा हो। अब हम देखते हैं बाय इसका फर्स्ट क्वेश्चन। First question, what will be the fate of the NADH produced by the glycolysis in yeast? What happens in yeast? Yeast undergo alcohol fermentation and convert NADH that is generated by glycolysis into NAD plus that allows continuous supply of the NAD plus to glycolysis for the production of the two molecules of the ATP. What happens in alcohol fermentation? In this, breakdown of glucose occurs in the absence of the oxygen, and pyruvate is converted to acetaldehyde and then to ethanol and CO2. First, it involves two steps. First, it involves conversion of the pyruvate into acetaldehyde by the pyruvate decarboxylase. As the name here, decarboxylase suggests the decarboxylation that involves a coenzyme TPP. TPP एक तरीके का coenzyme होता है। इसकी जो रिंग होती है ना, इसकी जो थायाजोलियम रिंग होती है वो आयनाइज हो जाती है, और जो C2 कार्बन होता है ना इसका, वो कार्बन अनायन फॉर्म कर देता है, जो अटैक करता है हमारे पायरुवेट मॉलिक्यूल को और इलेक्ट्रॉन सिंक की तरह काम करता है ये टीपीपी, और रिमूव करवाता है CO2 का। एक तरीके से हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी इंटरमीडिएट बना देता है, जो ट्रांसफर कर देता है हमारा एक्टिव एसिटल्डिहाइड का। जब एक बार एसिटल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है, फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एक्ट करता है, जिसको रिक्वायर होता है, दैट रिक्वायर्स NADH, और NADH का कन्वर्जन कर देता है टू NAD प्लस और फॉर्म कर देता है इथेनॉल। टू डिफरेंशिएट बिटवीन lactose fermentation and alcohol fermentation. Lactose fermentation is the process in which pyruvate is converted to lactic acid, or you can say lactate, while alcohol fermentation is a process in which again glucose is oxidized in the absence of the O2 to form two molecules of the pyruvate. Then pyruvate is converted to ethanol and CO2. In this, gas is released, which is CO2, while in lactose fermentation no gas is released. Now if you look at the reaction of lactose fermentation, in this pyruvate is converted to lactate. It means reduction occurs, that is done by the lactate dehydrogenase enzyme, short form lactate LDH, which requires NADH. Now if we look at the reaction of the alcohol fermentation here, first pyruvate in the of the pyruvate decarboxylase is converted into acetaldehyde, which involves removal of the CO2, and then acetaldehyde is converted to ethanol by alcohol dehydrogenase. Now to differentiate between Pasteur effect and Crabtree effect. It is discovered by the Louis Pasteur, and Crabtree effect was discovered by Grace Crabtree. What happens in Pasteur effect is that inhibition of the glycolysis occurs by while in Crabtree effect there is inhibition of the O2 consumption by addition of the glycolysis to tissues having aerobic respiration. It means when glucose concentration is high, inhibition of respiration occurs. ठीक है. Pasteur effect occurs due to inhibition of the PFK, that is phosphofructokinase, that is involved in the regulatory step of the glycolysis.
due to the inhibitory effects of the ATP citrate on the PFK. While in Crabtree effect, it occurs due to competition of the glycolysis for inorganic phosphate and NAD+, जो लिमिट कर देता है इनकी availability for phosphorylation as well as for oxidation. Now we have another question. Show schematically the role of three enzymatic activities and five coenzymes involved in the conversion of the pyruvate to acetyl-CoA by pyruvate dehydrogenase complex. Here we have a reaction. See the picture. You can see the picture on right hand side. The pyruvate is converted to acetyl-CoA. Here, oxidative decarboxylation occurs by the pyruvate dehydrogenase complex that involves three enzymes. That is, first one is pyruvate dehydrogenase, second is dihydrolipoyl ट्रांसएसिटाइलेज जो ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप टू कोएंजाइम ए और पीडीएच जो डीकार्बोक्सिलेशन में इन्वॉल्व होता है पायरुवेट के। फिर ये आता है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज जिसपे हमारा एफडी प्रेजेंट होता है और ऑक्सीडाइज करता है लिपोमाइड को। वी हैव 5 कोएंजाइम्स। ये देखो ये 5 कोएंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला आता है टीपीपी। अब ये टीपीपी इन्वॉल्व होता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था पहले कि टीपीपी डीकार्बोक्सिलेशन में इन्वॉल्व होता है पायरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन में इन्वॉल्व होता है और एक तरीके से क्या यील्ड करता है हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी कार्बन अनायन। नाउ the second coenzyme we have lipoic acid जो covalently attached होता है to the lysine residue of enzyme 2 that is dihydrolipoyl transacetylase. Then we have coenzyme A that is a substrate for enzyme 2 जो accept करता है acetyl group from the lipomide. Then we have FAD that is bound to enzyme E3 dihydrolipoyl dehydrogenase जो रिड्यूस हो जाता है बाय लिपोमाइड से और रिड्यूस हो जाता है और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है जो डाइसल्फाइड लिंकेज होती है लिपोमाइड में उसे और NAD होता है जो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है एंजाइम 3 में FADH को FAD में कन्वर्ट कर देता है और खुद NADH में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा लिपोइड होता है दैट इज लिपोइक एसिड एक तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम भी करता है और एसाइल ग्रुप कैरियर की तरह भी काम करता है। ये स्विंग करता है बिटवीन 3 डिफरेंट एक्टिव साइट्स ऑफ द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। अब हम देखते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू कैसे होता है। देखो पहले हमारा ये पायरुवेट मॉलिक्यूल आ गया, दिस इज द पायरुवेट मॉलिक्यूल। ये आ जाता है हमारा टीपीपी कार्बन अनायन। क्या है टीपीपी कार्बन अनायन? ये आ गया इसका कार्बन अनायन। इसका जो ये वाला कार्बन होता है ना ये अटैक करता है हमारे ये वाले कार्बन पे और इसको रिड्यूस कर देता है और अटैच्ड हो जाता है टू द पायरुवेट। जब ये अटैच्ड हो जाता है टू मतलब एक तरीके से CO2 के लॉस में मदद करता है डीकार्बोक्सिलेशन में। जब ये हो जाता है इसका मतलब क्या होगा रीअरेंजमेंट होता है। ये फॉर्म हुआ हमारा, यहाँ तक ये फॉर्म हुआ। अब इसके बाद यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो इधर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से ये चला गया, ये ग्रुप लीव कर जाता है, ये लीव कर गया तो ये हमारा क्या अटैच्ड हो गया टीपीपी से अटैच्ड है। अब इसके अंदर रेजोनेंस होती है क्योंकि यहाँ हमारे नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज था अब वो लोन पेयर के फॉर्म में आ गया है। ये लोन पेयर दोबारा इधर बॉन्ड में जाते हैं और एक डबल बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या फॉर्म होता है अभी हमने देखा था हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी कार्बन अनायन बन गया। ये इसके ऊपर H+ ने अटैक करा तो ये क्या बन गया हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी इंटरमीडिएट। ये हमारा अटैच्ड होता है टू एंजाइम 1। ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गया इसका ना पायरुवेट मॉलिक्यूल का। अब ये जो टीपीपी हाइड्रोक्सी इथाइल इंटरमीडिएट बनता है ना, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है
ये ट्रांसफर हो जाता है टू द लिपोमाइड में। लिपोमाइड कहाँ प्रेजेंट होता है? एंजाइम 2 में। जब ये लिपोमाइड में ट्रांसफर हो गया उसके बाद क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो गए और जो हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप होता है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है टू द एसिटाइल ग्रुप। और ये किस में ट्रांसफर्ड हो गया? किसके अंदर कहाँ चला गया? ये लिपोमाइड लिंकेज में। ये एक तरीके से थायोएस्टर बॉन्ड बना देता है बिटवीन एसिटाइल ग्रुप एंड लिपोमाइड के बीच में, लिपोअमाइड। फिर आता है एसिटाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लिपोमाइड। ये जो हमारा लिपोमाइड है ना, लिपोमाइड, इससे ट्रांसफर हो जाता है टू द कोएंजाइम ए पे और ये रिलीज हो जाता है एज एसिटाइल कोए। और रिड्यूस्ड लिपोमाइड हमारे पास जनरेट होता है विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एफिडी। ये देखो ये एफिडी हमारा एंजाइम 3 में प्रेजेंट है, इसमें ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ये जो हमारे लिपोमाइड जो डाइसल्फाइड लिंकेज होती है ना, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ये इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। अब जब ये खुद रिड्यूस हो जाएगा तो इसको भी तो रीजनरेट करने के लिए कुछ चाहिए होगा। इसके लिए हमें चाहिए होता है NAD+, सॉरी, जो क्या करता है, रिड्यूस जो फॉर्म होती है ना FADH2 की, उसको FAD+ में कन्वर्ट कर देता है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH में। अगर हम इसका सिंपलेस्ट वे देखें रिप्रेजेंटेशन का तो वो ये आ गया। देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस ने एक्ट करा। क्या गया? फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस ने एक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ TPP, जिसकी वजह से हमारा CO2 रिलीज हो गया और कार्बन अनायन फॉर्म हो गया किसका? हाइड्रोक्सी एथाइल TPP का। अब ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? टू द लिपोअमाइड और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल डाइहाइड्रो लिपोअमाइड। थायोएस्टर बॉन्ड बना दिया इसने लिपोअमाइड के साथ बिटवीन, ठीक है। ये फिर डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज फिर काम करता है। वो क्या करता है इसके अंदर, किसमें कर देता है इसे? कोएंजाइम A आता है, वो अपने साथ को ले जाता है एसिटाइल ग्रुप को और एज अ एसिटाइल को है। अब ये हमारा लिपोमाइड जो है ना ये रिड्यूस हो गया। अब इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए हमें चाहिए होता है FAD+। FAD+ आया, यहाँ आया हमारा फोर्थ पे FAD+ आया, उसने खुद को रिड्यूस करा FADH2 में, FADH2 में रिड्यूस करा और खुद किस में कन्वर्ट हो गया? खुद किस में कन्वर्ट हो गया? FADH2 में, और जो ऑक्सीडाइज कर दिया लिपोमाइड को। फिर आता है हमारा NAD+, जो FADH2 को FAD+ में कन्वर्ट कर देता है। नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन, एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। अब हमने देख लिया पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कैसे वर्क करता है। इसके अंदर 3 एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं। जब हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जब फॉस्फोराइलेटेड होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में होता है दैट इज एक्टिव। अब पायरुवेट काइनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनएक्टिवेशन ऑफ द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस बाय फॉस्फोराइलेशन, जो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है फ्रॉम ATP टू द PDH, thereby inactivating the enzyme। अब ये काइनेज की जो एक्टिविटी होती है ना, ये जो काइनेज होता है ये किससे एक्टिवेट होता है? ATP मॉलिक्यूल से, एसिटाइल कोए से एंड NADH से। वाइल ये इनहिबिट किससे होगा? कैल्शियम मॉलिक्यूल से, कोएंजाइम्स A से एंड पायरुवेट से NAD+ एंड ADP। अब हम देखते हैं हमारा इंसुलिन जो होता है ना वो स्टिमुलेट्स करता है PDH को, एक्टिवेट करता है। कैसे? मतलब एक तरीके से PDH को एक्टिवेट करता है बाय PDH फॉस्फेटेज। अब फॉस्फेटेज के नेम से पता चल जाता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा, माइनस कर देगा। ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, इसे एक्टिवेट करता है। कैल्शियम जो हमारा प्रोड्यूस होता है, कंसंट्रेशन जो होती है मसल एक्सरसाइज में, वो भी इसे प्रमोट करती है, Mg2+P। Give the reactions of oxidative phase of pentose phosphate pathway and give the biological importance of these reactions. So oxidative phase of the pentose phosphate pathway involve these are the irreversible steps and ये कन्वर्ट कर देता है हमारा ग्लूकोज
6 फॉस्फेट को, किसको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, राइबुलोज 5 कन्वर्टेड इनटू राइबुलोज 5 फॉस्फेट को, जो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है by the activity of isomerase into ribose 5-phosphate. First step involves oxidation of the glucose 6-phosphate. इसका जो फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है, फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, टू द ऑक्सीडाइज हो जाता है, दैट इन्वॉल्व्स NADP प्लस, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में। इसका ना क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में NADPH प्रोड्यूस होता है बाय द एंजाइम्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। अब इसके अंदर जब ये एंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा, इसके ऊपर फिर कौन एक्ट करता है, 6 फॉस्फो ग्लूकोनो लैक्टोनेज, जो एक तरीके से ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, और इसके अंदर हमारा NADPH प्रोड्यूस नहीं होता है इस स्टेप में। फिर नेक्स्ट स्टेप में दोबारा 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज आता है, जो हमारा ओपन चेन जब स्ट्रक्चर होता है ना, इसका जो सेकेंड OH ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है यहाँ पे, और राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और इसके अंदर CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और NADPH प्रोड्यूस होता है। यानी एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जब उसका कन्वर्जन होता है, जब वो कन्वर्ट होता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट में, तो 2 NADPH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, एक तो फर्स्ट स्टेप में, एक थर्ड स्टेप में, सॉरी। इसके बाद क्या होता है हमारा, जब राइबोल्यूज 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस हो जाता है, उसके ऊपर आइसोमरेज एक्ट करता है और इसको किस में कन्वर्ट करता है, राइबोज 5 फॉस्फेट में। अब इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, देखो जो हमारा NADPH जो प्रोड्यूस होता है ना, उसका काम क्या होता है, वो हेल्प करता है इन द फैटी एसिड सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में, सम स्टेरॉइड्स हार्मोन्स की सिंथेसिस में, और जो NADPH होता है ना, ये रिक्वायर्ड होता है बाय ग्लूटाथायोन रिडक्टेस में, जो हमारा रीजनरेट कर देता है रिड्यूस ग्लूटाथायोन को, जो प्रोटेक्ट करता है बाय द ऑक्सीडेटिव डैमेज दैट अकर्स ड्यू टू फ्री रेडिकल्स दैट इज जनरेटेड बाय ऑक्सीजन। अगर हम मेंटेन करेंगे एक तरीके से रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, एक एटमॉस्फेयर बाय द हाई रेशियो ऑफ NADPH to NADP plus and a high ratio of reduced glutathione to oxidized glutathione, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज, इसलिए हमें NADPH जरूर चाहिए होता है। और जब हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो राइबोज 5 फॉस्फेट ना प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है फॉर वेरी कोएंजाइम्स लाइक NADH, FADH2 कोएंजाइम एंड ATP मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड DNA मॉलिक्यूल्स एंड RNA मॉलिक्यूल्स। It is irreversible. Now let's look at another question. Elaborate on the non-oxidative phase of HNP pathway, that is dose phosphate pathway, and how does it feed into glycolysis. It is reversible arrangement of the carbon skeleton, और इसके अंदर 6-5 कार्बन जो शुगर फॉस्फेट होते हैं वो 5-6 कार्बन शुगर फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, और एक तरीके से कंप्लीट करती हैं साइकिल, जो अलाउ करता है कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिसकी वजह से हमारा NADPH प्रोड्यूस होता रहेगा, NADPH प्रोड्यूस होता रहेगा, और 6 CO2 मॉलिक्यूल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में होता है आइसोमराइजेशन एज वेल एज एपिमराइजेशन। देखो इसके अंदर जो हमारा राइबोज 5 फॉस्फेट जो ऑक्सीडेटिव फेज से प्रोड्यूस होता है हमारा, वह आइसोमरेज एंजाइम जब एक्ट करेगा दोबारा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो किस में, उसके ऊपर देखो इधर इसके अंदर ना एपिमरेज एक्ट करेगा, राइबुलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में। अब ये जाइलुलोज इन द प्रेजेंस ऑफ दी किसके साथ, सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसके अंदर ट्रांसकीटोलेस एंजाइम आएगा, जो 2 कार्बन यूनिट फ्रॉम द जाइलुलोज 5 फॉस्फेट को ट्रांसफर कर देगा टू द राइबोज 5
5 फॉस्फेट। और इसके अंदर क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, देखो इसमें बनेगा सीडो हैप्टिलोस 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इसके अंदर दोबारा एक एंजाइम आएगा ट्रांस एल्डोलेज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ 3 कार्बन एटम, और ये सीडोहैप्टिलोस से 3 कार्बन एटम लेगा और ट्रांसफर कर देगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और उसको फॉर्म कर देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और खुद किस में बन जाएगा, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में। फिर दोबारा ट्रांसकीटोलेज आएगा, ट्रांसकीटोलेज फिर आएगा और वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ एंड एरिथ्रोज 5 फॉस्फेट। ये वाला ट्रांसकीटोलेज इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसके साथ 2 कार्बन यूनिट ट्रांसफर करेगा, तो क्या करेगा, जाइलुलोज से 2 कार्बन ट्रांसफर कर देगा एरिथ्रोज पे, और एरिथ्रोज क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब ये कैसे लिंक करता है टू द ग्लाइकोलिसिस, देखो जब हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है और जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एक्ट करेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीएचएपी में, डीएचएपी में यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। फिर उसके अंदर एल्डोलिस एंजाइम एक्ट करेगा यानी इन दोनों का कंडेंसेशन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एक्ट करेगा तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, देन अगेन टू हेक्सोस आइसोमरेज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जब हमारी एक्टिविटी होती है किस किस की, जब ट्रांस एल्डिलोज की एक्टिविटी से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, और जब लास्ट वाले ट्रांस कीटोलेज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ऐसे ये एंटर कर जाता है ग्लाइकोलिसिस में। ओके आ रहा है, जब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, वही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है और बैक टू द ग्लूकोज ऑल्सो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप अच्छा लगा होगा लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट्स कीजिए, टेलीग्राम पर पूछिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइए। आगे बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली इस काम को करेंगे और भी ज्यादा चीजों को इंप्रूव करेंगे, कंटेंट क्वालिटी हर चीज को इंप्रूव करेंगे बट विद टाइम। और बाकी उसमें आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों की राय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके अकॉर्डिंगली फिर चीजों को जो है वो कस्टमाइज किया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।